شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے حسن کا انوار عالم کیا گونگا انوار عالم کیا گونگا انوار عالم کیا گونگا انوار عالم کیا گونگا ہر کوئی دانگے دنگے دیدار عالم کیا گونگا دیدار عالم کیا گونگا دیدار عالم کیا گونگا علی 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 کا نام لینا بھی عبادت ہے بولو سے گزارش کروں گا کہ یہاں ادھر ادھر بیٹھے ہوں تو لہذا منبر نور کی مقدس رحم کی باوقار زیر جنت بن کر ہاتھوں کو اٹھائیے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مولا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے مولا علی کا نام لینا بھی عبادت ہے اور ہم یہاں عبادت کر رہے ہیں کیا سے کیا علی کہنے والے کیا سے کیا علی کہنے والے ہوئے کیا سے کیا علی کہنے والے ہوئے کیا سے کیا علی کہنے والے ولی بن گئے ہاں ولی بن گئے مولا علی مولا 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 ہاتھ اٹھا کر پڑھ رہے ہیں کون کون پڑھ رہے ہیں مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا آسمان پہ جبریل مسلورانے لنگر آسمان پہ منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ سکے منکر کی کیا مجال میرے گھر میں آ سکے نام علی جو لکھتا نام علی جو لکھتا ہے میرے مکان پر مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کنت مولا علی علی من کنت مولا مولا مولا
من کنتو مولا علی علی من کنتو مولا علی علی آقا نے بولا علی علی آقا نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کے مولا زہرا کا شوہر تم مست کلندر میرے دل کے اندر حسنین کا بابا علی 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 بولے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے بولے تو لگتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے انگشتے بدل دھان ہے سب مکے کے کافی انگشتے بدل دھان ہے سب مکے کے کافی سوئے سے محمد اور جاگے تو علی ہے مولا علی مولا 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 پانچ پنجے تنگ مارے پانچ نام لے ہیں پنجے تنگ مارے گاڑی اندر بانے والے پانچ نام لے گئے پنجے تنگ مارے ان میں جیتے مرتے ہیں پنجے تنگ مارے آپ حضرت سے گزارش کی تشریف رکھیے آپ لوگ بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیے جب حضرت آئیں گے انشاءاللہ تو اس کے بعد ابھی آپ لوگ بیٹھ جائیں آگے سے لے کے پیچھے تک دائیں سے لے کے بائیں تک تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں اور نعت و منقبت کے اشعار کو بغور سماعت فرمائیں پہلے سبحان اللہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو میدان سید صاحب کے بلاک کو ان کی زیارت کرنے کے لیے منتظر ہیں اور ان کبھی نہیں آنے والے لگ بھگ آ گئے پانچ نام لے ہیں پنجے تنگ مارے ہیں ان پہ جیتے مرتے ہیں پنجے تنگ مارے ہیں ان پہ جیتے مرتے ہیں پنجے تنگ مارے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری آل رسول شہزادہ حضور سید امین القادری صاحب قبلہ حضور سید امین القادری صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری دیکھیے حضرات دھکا مکی کر کے بے ادبی نہ کریں ادب و احترام کے ساتھ حضور والوں کو اسٹیج پر آنے دیں آپ لوگ مسافہ کرنے کے لیے دھکا مکی نہ کریں تھوڑا وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دیکھیے بالکل بے ادبی نہ ہو کہ آپ
اور کو بازو تھوڑا سا محترم حضرات دیکھیے بے ادبی کا مظاہرہ نہ ہو، ادب و احترام کے ساتھ حضرت کو منبر رسول پر آنے دیا جائے۔ میں تمامی حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ مصافحہ کرنے کے لیے دیکھیے حضرات میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ حضرت کو آنے دیں۔ دیکھیے بے ادبی کا مظاہرہ نہ کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت کو ادب و احترام کے ساتھ اسٹیج پر آنے دیا جائے۔ محترم حضرات دیکھیے مصافحہ کرنے کا وقت ملے گا، ابھی حضرت کو منبر نور پر آنے دیا جائے۔ میں آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ کہیں مصافحہ کرنے کے چکر میں دھکا مکی کر کے بے ادبی نہ ہو، مصافحہ کرے اطمینان کے ساتھ، مگر ابھی اس وقت حضرت کو منبر نور پر آنے دیا جائے۔ محترم حضرات یہاں سے گزارش ہے آپ لوگ ہٹ جائیں، یہاں سے تمام لوگ ہٹ جائیے، تمام لوگوں کو ہٹا دیجیے۔ یہ مصافحہ بعد میں کیجیے گا، حضرت کو آنے دے۔ حضرات اس وقت تک نہیں اتریں گے جب تک یہ مجمع پورا ادھر میں چلے جائے، جب تک یہ لوگ یہاں سے ہٹیں گے نہیں، گاڑی کے پاس سے آئیں گے نہیں۔ چلے جاؤ ادھر مجمع میں، چلے جاؤ۔ والنٹیئر حضرات کہاں ہیں؟ وہ آ جائیے، بالکل جگہ خالی کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نذیر حضور امین شریعت، شہزادہ حضور امین شریعت، ناظرین اعلیٰ جامع رفاقت، سیدنا سید سعید احمد صدر محترم، ارے تم کیا کر رہے ہو؟ کمال ہے۔ سب جلسہ گاہ میں جائیے، سب جلسہ گاہ میں جائیے، گاڑی کے پاس کوئی بھی نہیں رہے گا، سب جلسہ گاہ میں چلے جائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سرکار امین القادری صاحب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، نگراں سنی دعوت اسلامی خاندان۔ دیکھو آپ اگر اس طرح سے بیٹھ جائیے، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیے اور بیٹھ کر حضور کا دیدار کریں۔ آج الحمدللہ ہمارے اسٹیج پر 3-4 سادات کرام ہیں، زیارت کیجیے، نگاہوں سے دیکھیے۔ یہ جو دھنگا مستی آپ نے ابھی کی ہے، یہ کم از کم جلسے کے بعد میں نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ جو جہاں رہے گا وہیں بیٹھا رہے گا۔ میری بات غور سے سن لو، آپ جلسہ سننے آئے ہیں کہ دھنگا مستی کرنے آئے ہیں؟ یہی ادب ہے آل رسول کا؟ یہ ادب نہیں ہے، ادب یہ ہے کہ نگاہوں سے دیکھو، دل میں اتار لو۔ یہ جو لوگ ادھر گھوم رہے ہیں یہ سب باہر نکل جائے، یہاں سے احاطے سے باہر نکل جائے۔ بابو چلو نکلو باہر، سمجھ میں نہیں آتی کہ سیدھی بھاشا۔ چلو تم بھی نکلو، چلو نکلو یہاں سے۔ یہی احترام ہے، یہ وہ ذات ہے جو کہ میدان قیامت میں آپ کو ہم کو بخشوائے گی۔ یہ وہ ذات ہے جو حوض پر ہمیں پیالے پلائے گی، اور تم اس طرح سے کرو گے۔ یہ ادب ہے،
یہ نہیں چلے گا. ابھی کر لیا. اختتام جلسہ کے بعد کوئی بھی اٹھ کر اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. اگر کھڑے رہنا ہے ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے رہو. ایک آل رسول کے احترام کا معاملہ جانتے ہو؟ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پریکٹیکلی طور پر ایک آل رسول کا احترام کر کے بتایا ہے. تم تو صرف اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہو، ان کی کسی بات پر عمل کرنے کی تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. ایک دم سناٹے کا ماحول دیکھنا چاہوں گا. صرف جب نعرہ لگے اپنی بیداری کا ثبوت دیں. ادھر ادھر کھڑے رہنے والے جلسہ گاہ میں آ جائیں. اب زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. اب پورا مائک حضرت کے حوالے. پورا وقت حضرت کے لیے حضرت کے لیے زوردار نعرہ لگائیے. گلے گلزار قادریات سنو. گلے گلزار قادریات نور نگاہ چشتیت و اشرفیت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت اولاد غوث اعظم سیدنا ذلہ النورانی نگراں سن ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنی بے سرو سما مدد قبلہ مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست منی عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد مگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی وحق کے خواجہ عثمانی ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین
چشتی، منبر پر رونق افروز نبیر حضور امین شریعت، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ، نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں، وجہ کل فقام، در اللہ المقنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقتع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہیں کیا ہونا ہے، کیوں رضا کرتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے ورنگاؤں کی سرزمین پر انعقاد پذیر ہے۔ یہاں کے لوگوں نے بڑی کاوشیں محنتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی کاوشوں کو محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کو کم و بیش 14 صدیاں بیت جانے کے بعد اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ابھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہم نے قبر میں آرام کے لیے رکھا ہی تھا کہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر جو کیف اور سرور ہمیں ہوتا تھا، جب حضور علیہ السلام کا چہرہ قبر انور میں پہنچ گیا تو ہماری کیفیت وہ نہ رہی جو حضور علیہ السلام کی موجودگی میں ہوا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے دور جتنا دور جائے گا اتنی غفلت بڑھتی جائے گی، اتنی بے حیائی بڑھتی جائے گی، اتنے گناہ بڑھتے جائیں گے، اتنے جرائم بڑھتے جائیں گے، اتنا دنیا داری بڑھتی جائے گی، اتنا نفس پرستی بڑھتی جائے گی، اتنا آخرت کی فکر لوگوں کے دل و دماغ سے نکلتی جائے گی۔ بات یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پر ہم سے رخصت ہوئے کم و بیش
14 सदियां बीत गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी को दुनिया से गुजरे हुए 14 साल भी बहुत होते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा कहते हैं इधर कब्र अनवर में लिटाया और चेहरा देखते वक्त जो कैफियत होती थी वो दिल की कैफियत बदलना शुरू हो गई। हालांकि वो जन्नती लोग थे, वो आसमान हिदायत के तारे थे, वो लोग गाफिल नहीं थे, वो अल्लाह वाले थे। उनके कदमों से जो जुड़ जाता था वो भी अल्लाह वाला हो जाता था, मगर उसके बावजूद चेहरे रसूल में जो ताकत और कुव्वत थी और जो पावर था, जब वो चेहरे अनवर कब्र अनवर में चला गया तो सहाबा कहते हैं फिर वो कैफियतें बदलने लगी और फिर बदलते बदलते अब हम जो दौर देख रहे हैं, अल्लाह अकबर, खैरुल कुरून में तो असहाबे रसूल सबके सब हक पर थे, सच्चाई पर थे, जन्नत के रास्ते पर थे, लेकिन अल्लाह अकबर अब उस दौर में और हम में तकरीबन 14 सदियां हैं। आप देखें तो सही, अल्लाह अकबर, उन लोगों से अल्लाह ने इरशाद फरमाया जो हक पर थे, सदाकत पर थे, आसमान हिदायत के तारे थे। अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तामलून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और क़यामत के दिन के लिए, मैदान महशर के लिए क्या भेज रहे हो, क्या रवाना कर रहे हो, इस सिलसिले में अल्लाह से डरते रहो और अल्लाह से डरो कि अल्लाह तुम्हारे आमाल की खबर रखता है। अल्लाह अकबर, जिन लोगों ने रातों दिन आखिरत की तैयारी की, उनसे मुखातब होकर के ये बात कही जा रही है। और आज के माहौल में हम देखें तो सही, अव्वलीन मुखातिबीन को ये बात कही जा रही है, हालांकि क़यामत तक सारे मोमिनीन इसमें दाखिल हैं, लेकिन आज हमारी क्या कैफियत है, आज हमारे क्या हालात हैं। अल्लाह अकबर, मुझे बताएं, कल अगर सर्दी का मौसम तेज होने वाला है तो लोग उसकी तैयारी तो कर रहे हैं, गर्मी का मौसम आने वाला है, लोग उसकी तैयारी तो कर रहे हैं, बारिश का मौसम आने वाला है, लोग उसकी तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, मौसमों की तैयारी करने वालों, बच्चों के मुस्तकबिल की तैयारी करने वालों, मकान और दुकान की तैयारी करने वालों, उस दिन के लिए क्या तैयारी की है। अल्लाह अकबर, जिस दिन ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना भाई काम आएगा, उस दिन कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर, खूबसूरत चेहरे जहन्नम के अंदर ऐसे सेके जा रहे होंगे, उलट पलट किए जा रहे होंगे। अल्लाह अकबर, हसीन और जमील चेहरे को अल्लाह अल्लाह जहन्नम की आग में जलाया जा रहा होगा। अल्लाह अकबर, उस दिन की कैफियत क्या होगी जिस दिन के बारे में कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन, कि उस दिन जिब्रील अमीन और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपते होंगे, सफ बसफ थर थर कांपते होंगे और किसी को कलाम करने की जुर्रत नहीं होगी। मुझे बताओ, उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की है? गफलत ही गफलत है, गफलत ही गफलत है। कितनी सादगी के साथ आज मुसलमान कहता है मौलाना नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता, नमाज के लिए वक्त नहीं मिलता। आप मुझे बताएं, आप किस चीज के लिए टाइम निकाल रहे हो? आप दुकान के लिए टाइम निकाल रहे हो, 8-8 घंटा दुकान पे बैठते हो। मुझे बताओ, ये दुकान की कमाई क्या मैदान महशर में कोई लेकर के जाएगा? आप मुझे बताओ, इंसाफ से कहना, अगर मुसलमान हो इस्लामी फिक्र के साथ अपने आप से मुखातब होकर के जवाब देना। बताओ, न सर्दी देख रहे हो, न गर्मी देख रहे हो, दौलत के पीछे दीवाने हो, दौलत की धुन है। मैं ये नहीं कहता दौलत न कमाओ, मगर ये जरूर कहूंगा दौलत के चक्कर में आखिरत को फरामोश न करो। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। अपने नसीब का कुछ नहीं लेकर के जाओगे नसीब के सिवा। और वो नसीब का क्या है, उसको कुरान क्या कह रहा है, तफसीर क्या कह रही है? अपने नसीब के अलावा कुछ नहीं लेकर के जाओगे दुनिया से। दुनिया से अगर कुछ ले जाओगे उसको कफन कहते। कब्र में दुनिया की एक ही चीज ले जाना है, उसे कफन कहते।
और वो भी अल्लाह राजी है तो ठीक, वरना वो कफन भी आग की चादर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इंसान भूल गए आखिरत को। ये दुनिया में हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए थे। दुनिया क्या है? सूफिया के नजदीक दुनिया की जिंदगी बस इतनी है, अजान हुई, इकामत हुई और नमाज हो गई। ये फलसफे मौत व हयात है सूफिया के नजदीक। क्या? अजान और इकामत हो गई, अब जमात खड़ी होने वाली है, तो जरा पूछो अपने उलमा से कि इकामत और नमाज के दरमियान कितना वक्त होता है। ये तो उलमा से पूछने की जरूरत भी नहीं, अगर आप नमाज के लिए जाते तो आपको खुद पता होगा। इधर हय्या अला सलाह, हय्या अला फलाह, कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह हुआ, सब खड़े हो गए और उसके बाद जैसे इकामत खत्म हुई वैसी जमात शुरू हो गई। तो इकामत और जमात के दरमियान जितना वक्फा है, बस इतनी इंसान तेरी जिंदगी है। 70 साल है, 50 साल है, 100 साल है, कितनी है? बहुत थोड़ा सा वक्फा है। हालांकि फिक़ही तौर पर पैदाइश की अजान और इकामत का और नमाज जनाजा का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ सूफिया का फलसफा है। पैदा हुए, अजान हुई, इकामत हुई, मर गए, नमाज जनाजा हो रही है। तो बच्चे के कान में अजान और इकामत देकर के गोया के ऐलान किया जा रहा है, ओ 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल जीने वाले, तेरी अजान भी हो चुकी, तेरी इकामत भी हो चुकी, अब तेरी नमाज होने वाली है। इकामत और नमाज के दरमियान की थोड़ी सी जिंदगी में जिना करके जहन्नमी हो जा, या नमाज पढ़ के जन्नती हो जा, झूठ बोलकर जहन्नमी हो जा, या सच बोलकर जन्नती हो जा, निगाहों को आवारा करके जहन्नमी हो जा, या निगाहों की हिफाजत करके जन्नती हो जा, दिल में कीना रख करके जहन्नमी हो जा, या दिल को पाक और साफ करके जन्नती हो जा, किसी पे जुल्म करके जहन्नमी हो जा, या किसी की मदद करके जन्नती हो जा, पैरों का सही इस्तेमाल करके इल्म की राह में चल के जन्नती हो जा, या फिल्मों की जगह पर जाकर के जहन्नमी हो जा। ये आप पर इख्तियार दिया गया है। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हारा इम्तिहान लिया है, तुम्हें जांचे, तुम्हें आजमाए कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। मेरे भाइयों, हम बहुत थोड़ी सी जिंदगी लेकर आए हैं। कितनी जिंदगी है? अल्लाह के रसूल की हर बात मानते हो? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इंसान दुनिया में मुसाफिर की तरह है। पहले लोग सफर करते थे, कारों से नहीं करते थे। पहले लोग ट्रेन से सफर नहीं करते थे, घोड़ों से, ऊंटों से, खच्चरों से सफर करते थे। तो मुसाफिर क्या करता था? जब चलते चलते थक जाता था तो किसी दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए, थोड़ी देर राहत पाने के लिए दरख्त के नीचे लेट जाता, फिर उठ करके चला जाता। अल्लाह के रसूल फरमाते जैसे मुसाफिर दरख्त के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए उतरता है, बस इतनी तुम्हारी दुनिया की जिंदगी की हकीकत है और कुछ नहीं। अब बताओ इसमें क्या कर रहे हो? भूल गए अल्लाह को? दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर समुंदर में उंगली डुबो करके निकालो तो जो तुम्हारी उंगली पर आएगा वो तुम्हारी दुनिया की तरह है और आखिरत समुंदर की तरह है। यानी दुनिया कितनी है, दुनिया की हकीकत कितनी है। एक हदीस में आया कि दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। जिसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं, उसके दीवाने। जिसको उंगली डुबो करके बाहर निकालो तो जितनी तरी उंगली पर लगती है उतनी दुनिया की हैसियत है, और समंदर आखिरत समंदर की तरह है। उतने से पानी पर, इतनी सी चीज पर, इतनी सी तरी पर दीवाने होके अल्लाह को भूल गए। और वो कौन सा गुनाह और जुर्म है जो हमारी जिंदगी के अंदर नहीं। और आज मेरी कौम को बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात के मानने वाले बाज नौजवान लड़कों को इतना घमंड है, वो सोचते हैं कि हम कुछ भी करें हम ही जन्नत में जाएंगे। ये बहुत खतरनाक फिक्र है। मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं सच्चाई से काम लेकर के आपसे बात करना चाहता हूं। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी हैं नाखुश, मैं ज़ैरे हला हल को कभी कह न सका कंठ। सच्चाई की बात करूं, सिर्फ आप समझते हैं
کہ ہم आशिक रसूल हैं और हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा। मैंने कहा ये फैसला तो रसूलुल्लाह फरमाएंगे कि आशिक रसूल है कौन। मैं और आप करेंगे ये फैसला, मैं और आप करेंगे ये फैसला। बड़ी माजरत के साथ अपने आप को धोखे में रखे हुए हो। कौन सी आशिक रसूल हो? आशिक रसूल वो कि फजर में उसकी नींद नहीं खुलती। अपने आप में टटोल करके देखो, आज से पहले फजर की नमाज कब पढ़ी थी तुमने? कितनी फजर पढ़ी है पूरी जिंदगी में? 30 साल की उम्र हो गई, 35 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, फजर कितनी बार पढ़ी? जरा काउंट करो। जुमा की 2 रकात पढ़ के मस्जिद से ऐसे भागते हो जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर वो स्कूल के बच्चे भागते हैं। कौन सी आशिक रसूल हो? जिस दिन पता चलेगा आशिक क्या होता है, उस दिन समझ में आएगा आशिक की तबीयत क्या होती है। अरे नादान, तू रोजाना बिस्तर में सोता पड़ा है, रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में देखता है, रात के 3-3 बजे तक के जराइम की फिल्में देखता है, नरम नरम गद्दों पे लेट करके गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में फेसबुक और यूट्यूब पे डूबा हुआ है, और सुबह 10-11 बजे से पहले उठता नहीं। तू कौन सा आशिक रसूल है? मैं ये कहने की जुर्रत नहीं करता कि आप आशिक रसूल नहीं हो, इसलिए कि आपके दिल की कैफियत आप जानते हैं। मैं तो जाहिर पे गुफ्तगू करने लगा हूं। कौन सी आशिक रसूल हो? अरे नादान, जिसकी आंख इश्क रसूल में सर झुकाने नहीं खुलती, वो कैसा आशिक रसूल? आशिक रसूल तो मदीने में हमने देखा है कि जब अल्लाह के रसूल ने आवाज लगाई, बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, सोने वालों सोने का वक्त नहीं, मुसल्ले पे रोने वालों रोने का वक्त नहीं, सजदा करने वालों अभी नस्ल इबादत का वक्त नहीं। चलो चलो, तुम्हें आमिना के लाल अब्दुल्ला के लख्ते जिगर मोहम्मद रसूलुल्लाह जान का नजराना लेकर के बुला रहे हैं। तारीख की औरात गवाह है, पहली रात का दूल्हा जब बिलाल की ज़बान से ये ऐलान सुनता है तो अपनी पहली रात की दुल्हन को छोड़ करके सर कटाने के लिए मुस्तफा जान रहमत के कदमों में हाजिरी देता। आशिक वो लोग थे पहली रात की दुल्हन छोड़ करके। तवज्जो करें, पहली रात की दुल्हन छोड़ना किसको कहते हैं? हुजूर के इश्क में पहली रात की दुल्हन छोड़ दी। सोचो तो सही, अभी वलीमा भी नहीं हुआ है। आप गौर करें, शादी का लिबास अभी मैला भी नहीं हुआ है, हाथ की मेहंदी अभी उसको रंग भी मध्यम नहीं पड़ा है। पहली रात किसे कहते हैं? लेकिन हुजूर के इश्क में छोड़ दियो, दुल्हन छोड़ दी, बीवी छोड़ दी। आपसे पूछता हूं, जिसने नबी के इश्क में पहली रात की दुल्हन छोड़ के जान दे दी, अगर आज आशिक रसूल होने का दावा करके आप नशा नहीं छोड़ सकते तो फिर कौन से आशिक रसूल? वो पहली रात की दुल्हन छोड़ दे, आप नशा ना छोड़े। वो पहली रात की दुल्हन छोड़ दे, आप झूठ ना छोड़े। वो पहली रात की दुल्हन छोड़ दे, आप माज़अल्लाह बेनमाजी पर न छोड़े। बात करने को बहुत है, हकायक कोई भी चीज बिना दलील नहीं मानी जा सकती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज मुसलमान जो पूरी दुनिया में लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, वजह एक है, वो आशिक वैसे नहीं जैसे उन्हें होना चाहिए। ज़बानी दावे बहुत है, हकायक कुछ नहीं, बस बातें ही बातें हैं। जानते हैं, जिनके दिलों में इश्क था वो बातें कैसी करते थे। सैयदना फारूक आजम से किसी ने कहा, अगर कोई बंदा छोटा गुनाह करता है तो क्या होता है? फारूक आजम ने कहा, छोटे बड़े गुनाह की बात आप जाने। फरमाते हैं, मैं तो इतना जानता हूं, गुनाह कोई भी करो हुजूर का दिल दुखता है। तवज्जो, ये आशिक की सोच। और फिर गौर करो, मैं यहां सिर्फ आशिकान रसूल से मुखातब हूं। मुझे बताओ, अगर कोई छोटे से छोटा गुनाह करो तो भी हुजूर का दिल दुखता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो भी कहां कहां कहां? कब्र अनवर में। जो कौम अपने नबी को रंजीदा करे, दुखी करे कब्र अनवर में, वो कौम ने सोचती है कि उनको सुख मिलेगा,
उनको इज्जत मिलेगी, उनको वकार मिलेगा, वो शान की जिंदगी जिएंगे। अल्लाह के बंदो, सोचो तो सही किस रास्ते पर जा रहे हो, किस दिशा को इख्तियार किया है, किस रास्ते को इख्तियार किया है और कहां जा रहे हो। कभी सोचा जो मां का दिल दुखाए, एक मर्तबा मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता, जो एक दिन में दर्जनों मर्तबा गुंबदे खजरा के अंदर अपने नबी का दिल दुखाए, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा कैसे आएगा। अपने आप में डूब कर जरा सोचो ना मेरे भाई, हम क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सा गुनाह है। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, सुल्तानुल आरिफीन सैयदना बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके बारे में ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, अल्लाह ने बायजीद बुस्तामी को वलियों में वो मकाम अता फरमाया है जो मकाम फरिश्तों में अल्लाह ने जिब्रील को अता फरमाया है। हजरत सैयदना सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह अकबर, आपको खून का पेशाब होता था और खून का पेशाब, अल्लाह अकबर, ये बीमारी बड़ी खतरनाक कही जाती थी कि खून का पेशाब किसी को हो। जब मुरीदीन को पता चला, मुरीद अपने शेख से मोहब्बत करते हैं, अपने शेख से प्यार करते हैं, सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी के मुरीदों को पता चला कि मुर्शिद को खून का पेशाब हो रहा है, तो उन लोगों ने मुर्शिद की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर आपको खून का पेशाब होता है, एक काम करें, किसी अच्छे हकीम से इलाज करा लें, किसी अच्छे तबीब से इलाज करा लें। सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मुरीदों से, मेरे भाइयों, मेरा इलाज कोई हकीम नहीं कर सकता, कोई तबीब नहीं कर सकता, जिसका इलाज न किसी हकीम के पास है न किसी तबीब के पास है। लोगों ने कहा, हजरत आपका इलाज हकीम और तबीब के पास क्यों नहीं है? फरमाया, ये कोई बीमारी नहीं है, मैं अपने जवानों की खास तवज्जो चाहता हूँ, मेरी कौम के जवानों जरा तवज्जो से सुनना, असलाफ की फिक्र क्या है, बुजुर्गों की फिक्र क्या है। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, मेरा इलाज, मेरी बीमारी का इलाज न किसी हकीम के पास है न किसी तबीब के पास है। फरमाते हैं वजह ये है, बीमारी मेरी क्या है उसको समझो। कहते हैं बचपन में मुझसे गुनाह हो गया था, वो अपने पे ही कह रहे हैं, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं, हम उनके लिए गुनाह नहीं मानते, हम अल्लाह वालों को महफूज अनिल खता मानते, लेकिन अपने पे वो अपने बारे में जो कहे उनका अपने आजिज़ी उनके सारी। फरमाते बचपन में मुझसे गुनाह हो गया था, अब जब वो मुझे याद आता है कि उस गुनाह के बारे में क़यामत में अल्लाह मुझसे पूछेगा, जब अल्लाह उस गुनाह के बारे में मुझसे सवाल करेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, तो क्या जवाब दूंगा, इसके खौफ से, अल्लाह के खौफ से मेरा जिगर पिघलता है और पिघल पिघल कर पेशाब के रास्ते से बहता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये अल्लाह के खौफ से मेरा जिगर पिघल करके बह रहा है। अब बताओ, बीमारी का इलाज तो हो सकता है, खौफे खुदा का इलाज क्या है, खशियत रब्बानी का इलाज। बायजीद बुस्तामी जैसा वली बचपन के मुतालिक ये सोचे, बचपन में किया हुआ गुनाह इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। जो नाबालिग होगा उस पर तो कोई शरीयत का हुक्म ही नहीं है, वो तो मुकल्लफ ही नहीं है, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। वहां यह है कि बचपन की फिक्र करके जिगर पिघाला जा रहा है और यहां पूरी जिंदगी फजर की नमाज नहीं और घमंड है, हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाए। ये मरने के बाद पता चलेगा कि कितने बड़े धोखे में थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जहन्नमी हो, मेरी बात का गलत मफहूम मत लीजिए, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, अपने अमाल का एहतसाब कीजिए, अपने अमाल की फिक्र कीजिए। आइए, चूंकि सर्दी का मौसम भी है, वक्त ज्यादा नहीं है, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं ये देख रहा हूं कि जो नेक लोग थे वो तो आखिरत के मामले में बहुत डरते थे, और जो नेक नहीं है वो बहुत बेबाक है। जो जन्नती थे उनको बहुत डर था। भाइयों, सब जन्नतियों को तो अपनी जगह रखो, मुस्लिम शरीफ की हदीस उठाकर देखो, हम झूठ बोल के भी तौबा करने को तैयार नहीं, नौतों में कमी करके भी हम तौबा करने को तैयार नहीं, रातें अय्याशों में गुजार के भी तौबा करने को तैयार नहीं है, लेकिन वो रसूल जो मालिक जन्नत है,
रसूल हमारे अकीदे में मालिक जन्नत है, और सिर्फ मालिक जन्नत नहीं, मालिक कुल है। कि हमारा अकीदा है कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। बुलंदी इतनी है, उनकी अजमत का अंदाजा कौन करे। अल्लाह अकबर। सिदरा एक मकाम है जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है, और सिदरतुल मुंतहा उसको इसलिए कहते हैं कि वो मकामात की इंतहा है, उस इंतहा पर एक फरिश्ता रहता है। तवज्जो करना, बुलंदी देखो, आजिज़ी देखो और अपनी हैसियत देखो। सिदरतुल मुंतहा पर एक फरिश्ता रहता है, उसका नाम जिब्रील अमीन है, वो सैयदुल मलाइका है, सारे फरिश्तों का सरदार है। लेकिन वो सैयदुल मलाइका जब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आता है तो अल्लाह अकबर, नबी के तलवों पर वो फरिश्ता अपना सर रखता है, और उसके सर पर जो ताज सजा है उसके मोती मेरे नबी के तलवों को सजदा करते नजर आते हैं। और मेरे इमाम इस मकाम को यूं बयान करते हैं, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रख दिए कितना वकार। अल्लाह अकबर। एड़ियां सिदरा के मकीन के सर के ताज के मोती जिसके तलवों को सजदा करे, जब तलवे का ये जलवा है तो उनके सरे मुकद्दस का आलम क्या होगा, उनके सरे अक़दस की शान का आलम क्या होगा। और उनकी शान तो ये है, जहां बानी अता कर दी, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। मर्तबा इतना बुलंद है, मकाम इतना बुलंद है कि सारे अंबिया बैतुल मुकद्दस में हाथ बांधकर जिसके पीछे खड़े होते हैं, और अहले सुन्नत का इमाम उसकी अक्कासी यूं करता है, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानी ये अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। सारे अंबिया जिसके पीछे हाथ बांधकर खड़े, मेरे आका। लेकिन आप मुस्लिम शरीफ की हदीस है, झूठ बोल के, जिना करके, यूट्यूब फेसबुक पर सारी गंदगी करके आज का मुसलमान तौबा करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जो सिर्फ मासूम नहीं बल्कि सैयदुल मासूमी, जाने कायनात, जाने इबादत, जाने ईमान, जाने इस्लाम, बल्कि ईमान की भी जान, ईमान का भी ईमान, वो रसूल जब नमाज का सलाम फेरते हैं तो हुजूर कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। आप गौर करें, हम जराइम करके अस्तगफिरुल्लाह कहने को तैयार नहीं। और सैयदुल मासूमीन, अहम्मुल इबादत, अहम्मुल फराइज, नमाज पढ़ के इस्तिग़फ़ार पढ़ के उम्मत को क्या तालीम दे रहे हैं? भाई गुनाह करके इस्तिग़फ़ार होता है, नेकी करके इस्तिग़फ़ार तो होता नहीं। और वो भी सैयदुल मासूमीन, जहां से गुनाह कभी करीब से गुजर कर भी नहीं जा सकता, वो इस्तिग़फ़ार करके क्या उम्मत को तालीम दे रहे हैं? ऐ उम्मतियों, नमाज पढ़ के मगरूर मत हो जाना, क्योंकि नमाज वो इबादत है, कितने भी खुशू से पढ़ोगे, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। इस्तिग़फ़ार करो नमाज। जिस नबी ने नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार किया है, उसकी उम्मत गुनाह करके भी इस्तिग़फ़ार करने को तैयार नहीं, सूद के धंधे करके भी इस्तिग़फ़ार करने को तैयार नहीं है, हराम लुक़मे खा के भी इस्तिग़फ़ार। तो बताएं फिर जन्नत का ख्वाब कैसा? तो बात यही है मेरे अजीज भाइयों, आखिरत से वाकिफ ही नहीं है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक आदमी था, सुन ले जरा, वो जन्नत के ख्वाब देख रहे हो, दिखा रहे हो, आप जाने आपका काम, मुझे आपने बोलने के लिए बुलाया, मैं हक बोल करके चला जाता। ये सोच करके अल्लाह करे आपकी आंखें खुले। अल्लाह, थोड़ा गौर करना, आप क्या समझते हैं? ये जो लोगों ने आपको पट्टी पढ़ा दी है ना कि नमाज पढ़ो सब मावे, नमाज पढ़ो सब मावे, नमाज तो हो किसी दिन,
पहले नमाज तो हो। ये क्या किसी का ईमान लेकर के भाग जाओ फिर नमाजी बन जाओ, रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत लगी। अपने मसलक में अहले सुन्नत में सूफिया की वो नमाज नहीं है कि मान लेके रो रहे हैं गिड़गिड़ा रहे हैं। आज पूरी कुव्वत किस में सर्फ हो रही है? दुआ दुआ दुआ। फला मौलाना साहब दुआ में बहुत रोते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते। मैंने कहा खुश नसीब है वो बंदा जिसको दुआ में रोना है, लेकिन सिर्फ रोने धोने से भी कोई काम नहीं चलता। बात अच्छी तरह याद रखना। और फलां की दुआ में चलो, वो बहुत रोते हैं, बहुत, सबका बेड़ा पार करवा देंगे, सबको बख्शवा देंगे। हमने कहा जनाब जी जरा हदीस पर नजर रखो। हदीस पर रोना बहुत अच्छी चीज है, गिड़गिड़ाना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कुछ हदीस पर भी नजर रखो। मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने देखा जंगल में एक रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। जब वो गिड़गिड़ा रहा था लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था दुआ पर, नबी ने सिफारिश कर दी। एक तो दुआ रोने वाले की सिफारिश किसकी? इज्तिमा के शुरका की आमीन नहीं, नबी की सिफारिश। तवज्जो है आपकी? हाँ, तो फिर क्या हुआ? जवाब आता है मूसा अगर ये मांगते मांगते गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते मर भी जाए इसकी दुआ कबूल नहीं करूंगा। नबी की सिफारिश पे जवाब आ रहा है। आप क्या समझ, वो गयूर है, गयूर, वो गैरत वाला है, उसकी रहमत पर तो तवज्जो है, उसकी गैरत पर तवज्जो नहीं है। क्या समझते हो? जब वो गैरत करने पर आए तो मासूम 200 साल तक इबादत करता है, जवाब नहीं देती। क्या समझते हो उसकी गैरत को? उसकी गैरत को समझते क्या हो? आदम अलैहिस्सलाम हम सब के बाप 200 साल तक पुकारते रहे, जवाब नहीं आया। ये गैरत का आलम है, ये गैरत का आलम। आप क्या समझते हो? हमारे बाप थे, अंबिया के बाप थे, मासूम थे, कोई गुनाह खता उनके दामन में नहीं था। एक लफ्ज़िश पैगंबराना थी, उसमें भी हजार हिकमतें थी, मगर उसके बावजूद भी गैरत का आलम तो देखो। हजरत मूसा कलीम ने सिफारिश की, मौला इसकी दुआ कबूल कर ले, तो जवाब आता है ये मर भी जाएगा गिड़गिड़ाते, ना कबूल करेंगे। पूछा इतना नाराज क्यों इससे कि कहा जा रहा है कि गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते मर भी जाएगा तो कबूल नहीं करेंगे? तो जवाब आता है मूसा इसके पेट में हराम लुकमा है और इसने जो कपड़े पहन रखे हैं उस कपड़े में एक दिरहम हराम का है। तो जिस कपड़े में हराम का दिरहम लगा हो और जिस पेट में हराम लुकमा हो उसकी दुआ कैसे कबूल की जाए? आज कहते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती। क्या माज़ अल्लाह तुमने ये समझा कि अल्लाह अपना खजाना बचा करके रखेगा? माज़ अल्लाह हदीस से पाक है, सारे अव्वलीन और आखिरीन जमा हो जाए किसी मैदान में और हर बंदा अपनी मनमानी मुरादें अल्लाह से मांगे और अल्लाह सबको दे दे, तो उसकी दौलत और उसका खजाना इतना है कि समुंदर में सुई डुबा कर निकालो तो जितना समुंदर में कम होगा उतना भी मेरे अल्लाह के खजाने से कम नहीं हो सकता। सबको देने के बाद भी तो अल्लाह बचा के रखेगा, उसकी कमी क्या है? फिर कबूल क्यों नहीं होती? बता दिया पेट में हराम होगा, बदन पे हराम होगा, कबूल नहीं करे। एक दिन राबिया बसरी अल्लाह अकबर नमाज शुरू की, लुत्फ नहीं आया, नमाज में मजा नहीं आया, लज्जत नहीं आई। आप कहेंगे नमाज में भी कोई मजा आता है? खुदा की कसम जिसको नमाज का मजा मिल जाए फिर वो तलवारों के साए में भी सजदा करता है। इमाम हुसैन ने क्यों किया? क्योंकि नमाज का मजा मिला था। खुदा की इज्जत की कसम आपको मैं सच्ची बात कहूं, जाकर उनसे लज्जतें पूछो सजदे की जो लोग पूरी रात सजदों में गुजार देते थे। किसी अच्छे खाने में उतना मजा उनको नहीं आया, सोने में उतना मजा नहीं आया, किसी से मिलने मिलाने में मजा नहीं आया जितना मजा उनको सजदे में आता है। क्यों? क्योंकि खाने में तो मखलूक है, खाना भी मखलूक है, सोना भी, नींद भी मखलूक है, किसी से मिलने वाला भी मखलूक है। लेकिन जब बंदा सजदा करता है तो सजदे का मजा क्या है? अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा। जब इबादत कर तो इस शान से कर कि गोया तू खुदा को देख रहा है। और वो अल्लाह वाले अहले एहसान जब सजदे में डूब जाते हैं तो गोया का पर्दा
पर्दा भी हट जाता है और यार के जलवों का मुशाहिदा दिल की आंखें कर लिया करती। नारे तकबीर। उनको मजे क्या आते सजदे में। खुदा की कसम जिस दिन इंसान को पता चल जाए सजदे की अहमियत क्या है, इंसान भी सजदे ही की तरफ बढ़ेगा। लेकिन जिनके पेट में हराम ही हो, जिनकी जबान पर हराम हो, जिनके कपड़ों में हराम हो, उन्हें क्या मजा आना है सजदे में। सजदे की अपनी लज्जत है, सजदे की अपनी लज्जत है। तो अल्लाह के बंदो, आज जो हम ये शिकायत कर रहे हैं, क्यों सजदे में दिल नहीं लगता। इमाम साहब अगर लंबी कर दे किरत तो बेचैन हो जाते, अगर फिल्म लंबी हो जाए तो मजा आता है, लेकिन किरत लंबी हो जाए तकलीफ होती है। अपने ईमान की खैर मनाओ, अपने ईमान की खैर मनाओ मेरे भाइयों। अर्ज ये कर रहा था, बात दूर न निकल जाए, कि जिन लोगों को वाकई मारिफत थी आखिरत की, वो डर रहे हैं और उसकी गैरत पर वो बेचैन भी है, वो तड़प भी रहे। और जिनको कुछ भी नहीं, वो बहुत सुकून से बैठे हुए हैं, बहुत सुकून से, बहुत चैन से बैठे हुए हैं। आइए मैं अपनी बात को समेटते हुए, कहीं तो समेटना होगा, समेटते हुए, बहुत तूल न देते हुए, आखिरत का एक पस मंजर पेश करता हूं। फिर उसमें थोड़ा हम और आप, मैं भी और आप भी जरा गौर करें। हालांकि मैं आपसे बहुत अच्छा नहीं हूं, हमें तो मजबूरी लाती है नसीहत के लिए। हमारे बड़े दुनिया से चले गए, इसलिए मजबूरन उनकी जगह पर आना पड़ता है, वरना हम लोग नसीहत के काबिल। बल्कि अक्सर जब मैं तन्हाई में होता हूं तो मैं सोचता हूं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मुकर्रिर लोग हैं, खतीब लोग, वाज और नसीहत करते, अगर वो उस पर अमल नहीं करते तो उनके होंठ आग की कैंची से काटे जाए। यहां हाथ चुमवा लेना, तकरीरें कर लेना बहुत आसान है, मैं अपने तय कह रहा हूं, लेकिन हमें एहसास है मोर नाचता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो अपने पैरों को देखता है, अपने पैरों को, तो उसको अपनी औकात समझ नहीं आती। मैं क्या, मेरी हैसियत क्या। अब जरा आखिरत की फिक्र के हवाले से थोड़ा आगे चलते हैं तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा घमंड दिल से निकालो। ये जो खप्त है ना कि हम ही जन्नती है, ये दिलो दिमाग से निकालो। सब करने के बाद उम्मीद करो, उम्मीद। लेकिन जो ये ना कि हम जन्नत में जरूर कुछ भी कर लें, हमने तो नबीरे अमीन शरीयत का दामन पकड़ा, ये जन्नत में ले जाएंगे। मैंने कहा अमीन शरीयत का नबीरा बिल्कुल जन्नत में ले जा सकता है, लेकिन जाने वाले में इतनी हैलियत नहीं है। क्यों पता है? जिसका इश्क रसूल इतना कमजोर हो कि वो इश्क रसूल उसको फजर में उठा के घर से मस्जिद तक खींच कर नहीं लाता, तो वो इश्क रसूल उसको खींचकर जन्नत तक कैसे ले जाएगा? दरअसल बात इतनी है, जिनका इश्क रसूल इतना कमजोर हो जाए कि वो खींचकर मस्जिद तक न लाए। इश्क क्या है मेरे भाई? मदीने से उठा के करबला तक खींच कर ले जाता इश्क। हाँ, इश्क बस्ती से उठा करके ओहद और बद्र के मैदान तक खींच कर ले जाता है। वो है आशिक लोग। हमने कहीं ना कहीं इश्क को बुलाया है। चले मैं अपनी बात क्या करूं, बल्कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं, क़ूतुल क़ुलूब में शेख अबू तालिब मक्की ने लिखा है। आप हुजूर की बात सुन लें, फिर मैं आगे की तरफ आता हूं। अगर आपका ज़ौक़ सलामत रहा तो करूंगा बात, वरना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी सुन्नी कौम इतनी खरी खरी शायद अभी सुनने की आदी नहीं हुई है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, मैं बात को समेटूंगा। तवज्जो करें, शेख फरमाते हैं, हदीस लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझ मोहम्मद से इश्क का दावा करता है और पूरी रात सोता रहता है, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो झूठा है, झूठा। हुजूर कह रहे, कौन झूठा? हुजूर फरमा रहे, मतलब ये है कि जो आशिक होगा वो पूरी रात नहीं सो सकता, या तो रात के पहले हिस्से में वो नफली इबादत करेगा, या तो रात के आखिरी हिस्से में वो नफली इबादत करेगा। और फिर सुनो अब अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उन मोहब्बत की निशानी ये है, जब सब लोग सो जाते हैं तो वो तहज्जुद में मेरी बारगाह में गिड़गिड़ाते हैं, ये उनकी मोहब्बत की निशानी है। जब लोग गाफिल हो जाते तो वो मेरा जिक्र करते हैं, जब लोग बिस्तरों की नींद सो जाते तो वो तिलावत कुरान करते हैं। ये आशिकों
की निशानी अल्लाह रसूल बयान कर रहे हैं। ईमानदारी से कहना, अपने ईमान और अकीदे को आवाज देकर अपनी ज़मीर की अदालत में खुद को खड़ा कह करके बताओ, जिसको रसूलुल्लाह झूठा कहे फिर उसको हम क्या कहें। सबसे बड़े मुर्शिद की बात है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात है। अरे नहीं ताज्जुद पढ़ सकते, कम से कम फजर तो पढ़ो। बहुत हम नारे लगाते इस पर कि गौसे पाक ने 40 साल ऐसे गुजारे कि इशा में वुजू करते थे और उसी वुजू से फजर की नमाज पढ़ते थे। ऐसे 40 साल आपके गुजर गए, इशा का वुजू फजर की नमाज, इशा का वुजू फजर की नमाज, पूरी रात इबादत में गुजारते थे। मैं कहता हूँ हम अब्दुल कादिर जिलानी तो नहीं है ना, लेकिन हम कादरी तो हैं, तो कम से कम इशा के वुजू से इशा पढ़ लो, फजर के वुजू से फजर पढ़ लो। नहीं इशा के वुजू से फजर पढ़ सकते हो तो इशा के वुजू से इशा पढ़, फजर की वुजू से इतना तो करो, इतना तो करो। तो आइए चलिए अब आखिरत की जो उन्वान लिया था उसको समेटते हुए करो। क्या फिक्र थी आखिरत की? दो बातें बस और बात खत्म। एक बात मैं सैयदना इमाम जाफर सादिक की करूंगा जो अहलुल बैत में से हैं, और एक बात फारूक आजम की करूंगा जो सहाबा में से, और दोनों पर बात मुकम्मल हो जाएगी। इमाम जाफर सादिक को जानते हो जो कुंडे की न्याज हम उनकी करते हैं। अब मैं समझता हूँ शायद हम इतना ही जानते हैं, बस हमें इतना ही पता है कि हमें कुंडे की न्याज करना चाहिए कि इमाम जाफर सादिक की, और वाकई उसकी बड़ी बरकतें हैं, बहुत बरकत है। अकीदत से जिन्होंने किया उसको बहुत कुछ मिला उस पर। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इमाम जाफर सादिक अपने दौर के गौसे आजम है। गौसियत कुबरा का जो सिलसिला चला है, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, ये छठे गौस हैं। गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज हैं सरकार इमाम जाफर सादिक। लेकिन पता है जब आखिरत की फिक्र गालिब होती थी तो जब आप अपने दोस्तों से और पब्लिक से, अवाम से मुसाफा करते थे तो आप लोगों का हाथ पकड़ते। तवज्जो कीजिए, ये है फिक्र आखिरत। इसको किसने लिखा है पता है? दाता साहब ने लिखा है, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो बयान कर रहा हूं। ये नहीं कि अपनी तरफ से कह रहा हूं। सरकार इमाम जाफर सादिक जो गौसे आजम और गरीब नवाज के भी आबा व अजदाद में से हैं, इतने अजीम सैयद हैं कि उनके वालिद इमाम बाकिर, उनके वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद इमाम हुसैन, उनके वालिद मौला अली, ये उनका शजरा नसब है। जब पब्लिक से मिलते थे तो हाथ पकड़ते और हाथ पकड़ कर कहते थे मुझसे वादा करो। क्या कहते थे? मुझसे वादा करो अगर क़यामत के दिन तुम्हारी बख्शिश हो गई तो तुम अल्लाह की बारगाह में मुझे बख्शवा लेना, मेरी सिफारिश कर दी। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? इमाम जाफर सादिक। इमाम जाफर सादिक रोजाना 300 से 700 रकत नफिल नमाज पढ़ने वाली शख्सियत इमाम जाफर सादिक कौन? इमाम आजम अबू हनीफा जिसकी जूतियां सीधी करते हैं। आप गौर फरमाएं, इमाम आजम जिसका खादिम इमाम आजम हो वो मखदूम कितना आजम होगा। और वो कह रहे हैं अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई मेरी सिफारिश करना, मेरी सिफारिश करना अल्लाह की बारगाह में मुझे बख्शवा लेना। और फिर कहते थे अगर मेरी बख्शिश हो गई तो मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी बख्शिश करवाऊंगा, तुम्हारी सिफारिश करूंगा। और लोग कहते थे हजरत आप तो सैयद हैं, आप तो आले रसूल हैं, आप हमसे कह रहे सिफारिश करने की, जबकि आपके नाना दादा ही तो मैदान महशर की अजीम शफी हैं, आप हमसे कहते हैं। तो इमाम जाफर सादिक रो कर कहते थे रोना तो यही है, रोना तो यही है। हम सोचते हैं कि कयामत के दिन हम अपने नाना को मुंह क्या दिखाएंगे। आप गौर करें, जो इमाम जाफर सादिक जैसी हस्तियां ये सोचे कि कयामत के दिन नाना को मुंह क्या दिखाएंगे। नफिल नमाज 300 से 700 रकत पढ़ने वाले लोग ये कह रहे हैं कि नाना को मुंह क्या दिखाएंगे। जो लोग ताश के पत्ते खेलते हैं वो ये क्यों नहीं सोचते? जो लोग सूद का धंधा करते हैं, सूद का धंधा जिसके बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने सूद का एक लुक़मा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा ज़िना किया। वो लोग ये क्यों नहीं सोचते? 700 रकत नफिल नमाज पढ़ने वाला रसूलुल्लाह का नवासा पोता होकर कह रहा है कि नाना को मुंह क्या दिखाएंगे। घर की शादियों में खुद नाच कर और औरतों को नचाने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि अपने नबी को क्या मुंह दिखाएंगे। पूरी पूरी जिंदगी मस्जिदों को वीरान करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि अपने नबी को मुंह क्या दिखाएंगे, अपने खुदा को मुंह क्या दिखाएंगे, अपनी रातों को गुनाहों के लिए वक्त
वक्फ करने वाले ये नहीं सोचते अल्लाह को मुंह क्या दिखाएंगे। आओ बस बात एंड की तरफ जाती है। ये तो अहलुल बैत का हाल है। और सहाबा का अल्लामा इब्न हजर लिखते हैं, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में बयान करके बात को खत्म करूं। इब्न हजर लिखते हैं कि एक दिन फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने हजरत काब अहबार को बुलाया। ये काब अहबार कौन है पता है? काब अहबार वो बुजुर्ग हैं जिनको तौरात इंजील का भी इल्म था और कुरान का भी इल्म था। हालांकि इन्होंने इस्लाम कबूल किया सहाबा के हाथ पर, रसूलुल्लाह की ज़ियारत इनको नसीब न हो सकी, लेकिन तौरात और इंजील के बहुत बड़े आलिम थे काब अहबार। तो और इनके ईमान लाने का वाकई बड़ा खूबसूरत है। अगर आप इजाजत दो तो मैं उसको बयान कर दूं कि वो ईमान कैसे लाए। इनका जो बाप था वो भी तौरात और इंजील का बहुत बड़ा आलिम था, और इनके बाप के पास तौरात की असल तख्तियां मौजूद थी। जो तख्तियां तूर पर नाजिल हुई थी वो विरासत में मिली थी, चूंकि ये औलाद पैगंबर में से थे, ये बनी इसराइल की औलाद में से थे। तो वो जो मूसा अलैहिस्सलाम को जो आसमान से तख्तियां मिली थी वो असली तौरात की कुछ तख्तियां काब के वालिद के पास थी। तो काब का जो वालिद था वो तख्ती छुपा छुपा के रखता था। तो एक दिन काब ने पूछा, क्योंकि जो चीज छुपाई जाती है बच्चों को उसका तजस्सुस होता है, और जब बच्चे ज्यादा ज़हीन हो तो और ज्यादा तजस्सुस होता है। मिसाल के तौर पर अगर जेब को मैं बार बार टटोल करके कुछ छुपाऊं तो आप मजमे को एहसास होगा ना कि आखिर लाया क्या है जेब में रख करके, जो बार बार जब वो टटोलता है छुपाता है, टटोलता है छुपाता है। इंसान की फितरत है, जो चीज छुपाई जाए इंसान उसकी टो में लगा रहता है। और जब बच्चा ज्यादा ज़हीन हो, नौजवान ज्यादा ज़हीन हो, तो फिर बात और भी बढ़ जाती है। तो इनको एहसास रहता था कि मेरा बाप मुझसे कुछ नहीं छुपाता, इतना प्यार करता है, लेकिन ये क्या चीज है जो छुपाता है। तो एक दिन पूछ लिया, बाबा ये इसमें है क्या जो आप मुझसे भी छुपाते हैं? तो मुंह से निकल गया, इसमें तौरात की असल तख्तियां हैं चंद, जो हजरत मूसा को आसमान से मिली थी, तूर से जो वो लाए थे, वो नस्लन बादा नस्लिन वरासतन मुझे मिली है। तो कहा बाबा जब आपका मानना ये है कि तौरात अल्लाह की किताब है तो उसको छुपाने का क्या मतलब है, और आप क्यों छुपाते हैं? तो उस वक्त कहा नहीं, मैं तुमको इसको अभी हाथ लगाने नहीं दूंगा, मेरी मौत के बाद जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरी जिंदगी में तो हाथ नहीं लगा सकता। फिर क्या हुआ, हजरत काब को एहसास हुआ जब तौरात अल्लाह की किताब है तो ये छुपाने के लिए तो नहीं नाजिल हुई, ये तो आम करने के लिए नाजिल हुई, आखिर राज क्या है? तो इन्होंने एक दिन बाप की गैर हाजिरी में वो तौरात की तख्तियां निकाली, तो उसके ऊपर जो वो कीचड़ पोता हुआ था, यानी उस पर कीचड़ पोत दिया गया था, आपने उसको हटाया, धुला, देखा तो क्या था, इत्तेफाक से ये तख्ती का वो हिस्सा था जिसमें आखिरी नबी की निशानियां लिखी हुई थी, और यहूदी उस निशानी को छुपाया करते थे। और उसमें क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था उनकी आंखें तो सुरमगी होगी, सियाह आंखें होगी, अल्लाह अकबर, और फिर उनकी काली सियाह जुल्फे होगी जो कभी कानों तक और कभी शानों को छूती होगी, और वो मियाना कद होंगे, और अल्लाह अकबर कसरत से मुस्कुराने वाले होंगे। तौरात में हुजूर की निशानी देखें, कसरत से मुस्कुराने वाले होंगे और कसरत से कत्ल करने वाले होंगे, ये निशानी थी। और ऐसे ऐसे होंगे, बाजार में चिल्लाने वाले नहीं होंगे, नरमखू होंगे, बाअखलाक होंगे। तो यहूदी क्या कहते थे कि उनकी तो कंजी आंखें होगी, यानी भूरी भूरी आंखें होगी, ये तौरात की निशानी है, और उनकी आंखें तो सियाह थी, और इन्होंने क्या कर दिया, बदल दिया तौरात को कि कंजी आंखें होगी, कद उनका छोटा होगा, इस तरह उन्होंने निशानी बदल दी थी। लेकिन जब खुद के बेटे के हाथ में तौरात लगी, तो जब वो तौरात की तख्तियां देखते तो दिल कहता अरे ये तो वही निशानी है जो मुसलमान अपने नबी की बताते हैं। आंखें उनकी सियाह होगी, सुरमगी होगी, कद उनका दुनियाना होगा, बाजार में चिल्लाते नहीं होंगे, बाअखलाक होंगे, मक्के के अंदर उन्होंने जान के दुश्मनों को माफ किया, ये सारी चीजें उन्हें पता हो गई। तो कहा कि इसका मतलब ये सारी निशानी उसी नबी की है जिसको आमिना का लाल अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कहा जाता है। लेकिन एक तशरीह में करना चाहता हूं, तौरात के अंदर यह भी था वो कसरत से मुस्कुराते होंगे और कसरत से कत्ल करते होंगे। मैं कहता हूं जोड़ ही नहीं बनता,
मुस्कुराने का और कत्ल करने का। इसलिए कि अगर ये हो कि गुस्से वाला होगा और कत्ल करने वाला होगा तो जोड़ बनता है। मुस्कुरा के कत्ल करने का मतलब क्या है? तो मुस्कुरा के कत्ल करने का मतलब ये है, और तो तलवारों से कत्ल करते हैं गर्दनों को, लेकिन वो गर्दनों को कत्ल नहीं करेंगे, वो मुस्कुरा मुस्कुरा करके दिलों को कत्ल करके कुश्ता इश्क़ रसूल बनाएंगे। जब तबस्सुम करेंगे तो देखने वाला अबू बकर भी कुश्ता इश्क़ रसूल होगा और बिन देखे उवैस भी कुश्ता इश्क़ रसूल होगा। ये वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। गर्दनें उड़ा के कत्ल करना तो सबको आता है, मुस्कुरा करके दिलों को कुश्ता इश्क़ रसूल बनाना ये आमिना के लाल की शान है। अभी ये हो ही रहा था कि बाप आ गया, क्या किया तूने, और खूब मारा, लेकिन अब हकीकत आश्कार हो चुकी थी और हजरत काब ने फिर सहाबा के हाथ में इस्लाम कबूल किया। जब मुलाकात हुई फारूक आजम से तो फारूक आजम ने उनको दावत दी। क्या दावत दी? चलो। क्या दावत दी? चलो, जिसका कलमा पड़ा एक मर्तबा उसके मजार की जियारत कर लो। पता चला मजार की जियारत की दावत देना ये बिदत नहीं है मौलवी की, ये सहाबा की सुन्नत है। तवज्जो है आपकी। और एक अहम बात, यहूदियों का तरीका था कि नबी की तालीम तो बताते थे, नबी की फजीलत नहीं बताते थे। तो अब गौर करें, तालीमात नबवी बताना भी जरूरी है और फजाइल नबूवत बताना यह भी जरूरी है। जो सिर्फ तालीम पर जोर देते हैं और फजीलत नबूवत नहीं बताते, थोड़ा सा वो गौर करें कि किसके रास्ते पर है। असल इस्लाम ये है कि तालीम भी बताओ और फजीलत भी बताओ। क्यों? क्योंकि तालीम तो कोई भी बड़ी दे सकता है, लेकिन वो कोई फजीलत वो पा सकता है? अरे झूठा आदमी भी कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, ऐसा है कि नहीं है? मिसाल के तौर पे आप है, हमारे नबी ने फरमाया सच बोलो, तो कोई उठ कर खड़ा होगा, हमारे फौला ने भी कहा सच बोलो, है ना? लेकिन जब आप कहेंगे हमारा नबी रात के थोड़े से हिस्से में वो दार उम्मे हानी से निकलता है और मस्जिद अक्सा जाता है, नबियों की इमामत करता है, नबियों को खुतबा देता है, फिर पहला आसमान, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा आसमान, फिर पांचवा आसमान, फिर छठा आसमान, फिर सातवां आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर अर्श, फिर लामका, और खुदा का दीदार करता है, खुदा से बातें करता है। और जब वापस लौटता है हमारा आका लामका की सैर से, तो जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गरम था। ला कोई तेरा कायद है तो ऐसा बता दे, दुनिया हैरान होगी। अरे जब जिब्रील ये कह गए मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, जमीन और आसमान को उलट पलट करके देखा, आप जैसा किसी को नहीं देखा, यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले, जान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। कोई बता सकेगा इन जैसा? कोई बता सकेगा इन जैसा? हलीमा की बकरी के पीछे है जंगल में, लेकिन आसमानों पर जिब्रील के आगे आगे। ये अपने नबी की शान है। इसलिए कहता हूं हिंदुस्तान में बचाना है तो नबी की फजीलत बयान करनी पड़ेगी। हाँ, खास तौर पर इस इर्तिदाद के दौर में जिन लोगों को नबी की फजीलत पे बुखार आता है, उनसे मेरी गुजारिश है, अगर दीन की खिदमत में मुखलिस हो तो नबी के फजाइल ईमानदारी से पढ़ो, अगर ईमान है, और ईमान नहीं तो कम से कम दयानतदारी से पढ़ो, है कम से कम दे। तो कहा वो कैसे? फजीलत पढ़ने से क्या होगा? मैंने कहा अगर आज कोई आकर कह दे कि हमारे फुला ने हिमालय हाथ में उठाकर वहां तक पहुंचाया था, तो तुम कहोगे तुम्हारा नबी तो वो है जिसको दीवार के पीछे की खबर नहीं है? तो क्या जवाब होगा आपके बच्चों के पास? आप तो मर जाओगे, हड्डियां भी पिघल जाएगी। लेकिन जब फजीलत का जहन होगा तो कहेंगे अरे तुम्हारे फुला ने क्या उठाया था वो तो वो जाने, लेकिन बहरहाल हथेली का सहारा तो था। लेकिन जो मेरा नबी जिसका मैं कलमा पढ़ता हूं, उसने जमीन पे खड़े रहकर सिर्फ इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया। ले आओ बड़े से बड़ा ताकतवर शक्तिमान, ले
ये मेरे नबी की कुव्वत है। फजाइल पढ़ने पड़ेंगे आपको, इसीलिए फजाइल के बगैर काम नहीं चलेगा। और फजाइल में दिल छोड़, अगर आपको नहीं वो तो हमारी तरह थे और वो तो बकरी का दूध दोते थे, तो मैंने कहा बकरी के दूध में तू डूबा है, तुझे नहीं पता बकरी का दूध तू भी दोता है, मैं भी दोता हूं, लेकिन जब वो दोते हैं तो फिर होता क्या है, हम जो बकरी के थन में दूध होता है उतना ही दो पाते हैं। लेकिन मेरे नबी सफर हिजरत में उम्मे बाबत की कवारी बांझ बकरी जिसके थन सूखे थे, कहते जरा मुझे ला के दे, मैं दूध दो करके बताऊं। जैसे थन को हाथ लगाया तो सूखे हुए थन में दूध आ गया, और दोते दोते उम्मे बाबत का पूरा घर दूध से भर गया। जब फरमाया और बर्तन ला, तो उम्मे बाबत ने कहा बर्तन खत्म हो गए। जब गए तो आकर के उसके शौहर ने कहा ये दूध आया कहां से, बांझ बकरियां तो दूध नहीं देती। तो हुजूर का नाम पूछना भूल गई थी, तो कहती थी एक बरकत वाला आया था, उसकी सारी बरकतें नजर आ रही। मेरे भाइयों ये होती है बात। मेरी आप हम लोग कोई फिरका वारियत की बात नहीं करते, क्योंकि सूफिया के दामन से वाबस्ता है, लड़ाई झगड़े की बात, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि हुजूर के फजाइल पढ़ने पड़ेंगे। अगर आज कोई यहूदी उठे, यहूदियों ने तो बहुत ज्यादा दहशत मचा रखी है, कोई यहूदी उठे उठ कर कहे कि हमारे नबी तो मूसा थे, मैं कहा बिल्कुल हमारे भी हैं, हमारे भी हैं, है ना, क्योंकि हम हर नबी को मानते। तो कहा मूसा हमारे नबी थे, उन्होंने तो पत्थर पे ऐसा मारा तो पानी के चश्मे जारी हो गए। मैं कहा बिल्कुल सच्ची बात, बड़ा मौजज़ा है। लेकिन जो मेरा नबी है ना, जिनका कलमा पढ़, हर नबी हमारा नबी है, जिनका कलमा हम पढ़ते हैं, वहां मूसा है, असा है, पत्थर है। असा को पत्थर पे मारो तो पानी का चश्मा जारी होता है, यहाँ ना असा है ना पत्थर है। प्यासे आगे कहते हैं प्यास लगी है तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते, ये बात होती है। असल बात ये है कि फजाइल पढ़ने होंगे। बात दूर निकल रही है। अर्ज क्या कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल होना चाहिए, लेकिन फजाइल के साथ। तो काबे अहबार जो मुसलमान हुए वो तालीमात की वजह से नहीं, फजाइल की, क्योंकि तालीमात तो वहां पहले से मौजूद थी अंबिया की। मैं तालीमात का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन मुतासिर जो है वो फजीलत है। तो काबे अहबार को आपने दावत दी, काब चलो जरा हुजूर की रोजे की ज़ियारत कर। हाय हाय, कौन दावत दे रहा है पता है? कौन दावत दे रहा है? जो हजर अस्वद को कहता है कि मैं तुझे चूमता नहीं। देखो कैसा मुवहिद है अपने जमाने का, बेमिसाल, जिसने खुदा के देखने वाले से तो इसी के कहो हजर अस्वद, न तू नफा दे सकता है न नुकसान दे सकता है, मैं तुझे कभी ना चूमता। क्यों? अगर अपने महबूब को चूमते हुए न देखता। हाँ, यानी पत्थर को नहीं चूम रहे हैं, महबूब की अदाओं का एहतराम। तवज्जो तो करे ना, हबीब ने चूमा हम भी चूमेंगे, ये बात है। बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि फारूक आजम ने कहा कि काब जरा मुझे ऐसी बातें सुनाओ, कैसी कि मेरे दिल में आखिरत की तैयारी का शौक मजीद पैदा हो, मैदान महशर की तैयारी का शौक मजीद पैदा हो, खौफ खुदा मजीद पैदा हो। तो काब अहबार ने कुछ बातें कही, इब्न हजर उसको लिखते हैं, उसी पे बात तकमील को पहुंचती है। अल्लाह करे किसी के दिल में उतर जाए। पता नहीं मैंने यहाँ कहीं करीब में पढ़ी हो न पढ़ी हो, मुझे याद नहीं, लेकिन आज वरनगांव के इन आशिकान रसूल की महफिल में ये पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा। काब अहबार से फारूक आजम कहते हैं मुझे वो बात बताओ, मेरा खौफ दिल का ज्यादा है और मुझे आखिरत की तैयारी का मजीद ज़ौक़। हालांकि इतनी तैयारी थी आखिरत की कि आंख पर आंसुओं के निशान थे, गाल पर, आंख से गाल तक आंसुओं के निशान थे रोने के, और पूरी रात इबादत में गुजरती थी। फारूक आजम के बारे में कि बैठे बैठे सोते थे। जब आप खलीफा बन गए, अमीरुल मोमिनीन बन गए, तो आप अक्सर बैठे बैठे सो जाते थे, ऊँघ आ जाती थी। लोग कहते थे अमीरुल मोमिनीन आप सोते नहीं, तो कहा क्या करूं, अगर दिन को सोऊंगा तो रियाया का हक जाय होता है, और रात को सो जाऊंगा तो फिर अल्लाह की इबादत कैसे करूं। तो दिन को इसलिए जगता हूं कि रियाया की खिदमत करूं, और रात को इसलिए जगता हूं कि खुदा की खिदमत में हाजिर हो जाऊं। नहीं सोते थे, ये हाल था, ये तैयारी थी आखिरत की। मेरे भाइयों, खुदा के लिए रहम करो, पहली और आखिरी बार आए हो दुनिया में, पछताओगे, अमल करो, अमल।
अल्लाह ने ईमान की दौलत दी, बहुत बड़ी दौलत। हालांकि ईमान वाला कितना भी कुछ भी कर ले, अगर वो ईमान पर दुनिया से गया तो वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। मैं ऐसी कोई बात आपसे नहीं कर रहा हूं कि आप हमेशा जहन्नम में रहोगे, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, गौसे पाक का फरमान है, जैसे बुखार का इलाज न करो तो मौत आती है, बुखार मौत लाता है, अगर गुनाह से तौबा न करो तो गुनाह इंसान को कुफ्र तक ले जाते हैं। ये मत समझना कि हम कुछ भी कर लें फिर जन्नती। अल्लाह न करे ईमान चला गया ना गुनाह की वजह से, कहीं के नहीं रहोगे। अल्लाह सबके ईमान की हिफाजत करे, अल्लाह सबको ईमान पे रखे, खात्मा बिल खैर में। कुछ लोग ये समझते हैं कि अमीनुल कादरी ने कह दिया कि बेनमाजी काफिर है। मैं क्यों कहूंगा? मैं फिक्र रजा का पाबंद हूँ, इमाम आजम के फतवे का पाबंद हूँ, मैं क्यों कहूंगा? लेकिन ये जरूर कहूंगा जो मेरे इमाम ने फरमाया। मेरे इमाम ने फरमाया कि जो अजान, हदीस की रोशनी, कि जो अजान का जवाब न दे और दुनिया की बातों में मसरूफ रहे, डर है कि काफिर होके मरेगा। तो जो अजान का जवाब न दे वो डरे काफिर होके मरेगा, जो नमाज ही को ना जाए। ज़वाल ईमान का खतरा है, इसलिए होश में रहो। हम कोई अपनी तरफ से बात नहीं कहने वाले। तो फारूक आजम ने कहा, काब ऐसी बातें सुना मेरे दिल में खौफ और ज्यादा पैदा हो, आखिरत की तैयारी का ज़ौक और ज्यादा पैदा हो। तो काब अहबार ने कहा, अब सुन ले, इस पे कोई तफसीरा नहीं करूंगा लेकिन सुन ले। काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि जब क़यामत के दिन जहन्नम लाई जाएगी और जहन्नम के मुंह में 70,000 लगामें होगी, 70,000 लगाम, 70,000 लगाम डालकर फरिश्ते उसको खींचकर ला रहे होंगे और हर लगाम पर 1,000 फरिश्ते होंगे। तो जब जहन्नम पहली मर्तबा भड़केगी, उसके शरारे बुलंद होंगे, तो लोगों का हाल ही होगा, लोग कांप जाएं। और दूसरी मर्तबा जब जहन्नम सांस लेगा और उसके शरारे बुलंद होंगे, तो अमीरुल मोमिनीन, लोगों का हाल ये होगा कि उनके दिल उनके सीने से निकलकर उनके हलक में अटक जाएंगे। अभी यहां नमाजी, बेनमाजी, नेक, बद, इसका कोई तस्करा नहीं हो रहा है। आप गौर कर लें, इसको मैदान महशर कहते हैं। महशर फिर महशर है। ये जो आजकल की आपकी फिक्र है ना कि जो होगा देखा जाएगा, शायरी की दुनिया अलग है, हकीकत की दुनिया अलग है। शायरी की दुनिया अलग है, हदीस की दुनिया अलग है। यूं ही गौस पाक नहीं रोते थे पूरी पूरी रात, यूं ही मौला अली नहीं रोते थे, यूं ही सिद्दीक अकबर नहीं रोते थे, यूं ही इमाम आजम दाढ़ी पकड़ के कहते थे, अल्लाह क़यामत में तू नौमान से क्या सवाल करेगा, मेरे बुढ़ापे पे रहम कर, मेरी सफेद दाढ़ी पे रहम कर। वो इमाम आजम जो रमजान शरीफ में 61 कुरान खत्म करते थे, वो इमाम आजम जो पूरी पूरी रात इबादत में रहते थे, अल्लाह अकबर, जो 1000 रकअत नफिल नमाज रातों को पढ़ते थे, उनका हाल ये कि दाढ़ी पकड़ के कहते थे, तुम मुझसे क्या पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा। और हमारा हाल अल्लाह रहम व करम फरमाए। हजरते काब कहते, अमीरुल मोमिनीन, जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा, हलक के अंदर दिल अटकेंगे। दिल, कभी सोचा मछली का कांटा हलक में फंसे तो क्या होता है, रोटी का टुकड़ा हलक में फंसे तो क्या होता है। मुसलमानों, वो क्या मंजिल होगी, वो क्या वक्त होगा, वो क्या हालत होगी कि जब जहन्नम सांस लेकर के भड़क रहा होगा और लोगों के सीने से दिल निकलकर उनकी हलक में अटक रहे हो। ये मंजिल से हमें गुजरना है, और वो भी कब? सूरज और हमारे सरों के दरमियान 1 हाथ का फासला होगा। आज सूरज चौथे आसमान से चमक रहा है, पीठ की तरफ से, उस दिन वो सर के ऊपर चमकेगा और चेहरे की तरफ से। कानों में ईयरफोन लगाकर मटक मटक कर चलने वाले, गाने सुनने वालों, म्यूजिक में अपनी रातें गुजारने वालों, फटी पैंट हीरो की नकल में पहनने वालों, कानों में बालियां पहन करके हीरो की नकलें करने वालों, हंसने की बात नहीं, कोई मुशायरा नहीं, ये किसी के दिल की आवाज है, किसी के दिल का दर्द है। सोचो सोचो, गौर करो, एक दिन मौत है। बुढ़ापे ही में मौत नहीं आएगी, जवानी में भी मौत आ सकती है। ये सोचने वालों के बूढ़े होंगे तो मस्जिद का कोना पकड़ोगे, जवानी में तुम नहीं पढ़ते, बुढ़ापे में अल्लाह पढ़ने ना दे, उसकी खुफिया तदबीर। अरे बुढ़े बैल को तो वो कुर्बानी में भी कबूल नहीं करता। जब किसी के काबिल नहीं रहोगे और दरवाजे से और सारी दुनिया रिजेक्ट कर देगी, फिर अल्लाह वाले बनोगे। जो कुर्बानी में बुढ़ा बैल कबूल ना करे, उसकी शान गैरत का ये आलम है, तो अपनी इबादत के लिए तुम्हारा बुढ़ापा कबूल करेगा।
जो करना है जवानी में करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह को सबसे ज्यादा जो महबूब है वो जवानी में इबादत करने वाले लोग महबूब है। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जो जवानी में गुनाह से बचता है अल्लाह उसको 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाता है। 70 सिद्दीकों का सवाब। सिद्दीक का मर्तबा वली से बढ़कर है। अंबिया के बाद बड़ा मर्तबा सिद्दीकीन का है। मेरे सच्चे नबी ने फरमाया जो जवानी में गुनाह से बचे अल्लाह उसे 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाएगा। अपनी जवानी ताश के पत्तों के लिए नहीं, अपनी जवानी औरतों को पाप की नजर से तकने के लिए नहीं, अपनी जवानी जाय करने के लिए नहीं, इबादत के लिए लुत्फ लो जवानी में, इबादत का, तिलावत का, नातों का, हुजूर पे दुरूद पढ़ने का, इसलिए कि पता नहीं कब मौत आए। जवानी में भी लोग गए हैं और जवानी में देखते देखते गए हैं, इसलिए बुढ़ापे का इंतजार न करो। बुढ़ापा आया भी और तौफीक इबादत न हुई तो हमसे बढ़ करके पछताने वाला कौन होगा। काबे हबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन जब दूसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और शरारे बुलंद होंगे तो लोगों के दिल उनके हलक में अटकेंगे। फारूक आजम रोते रोते हिचकियां बन गई, हमक हमक कर रोने लगे। फिर कहते हैं काब दिल के कान से, माए और बहनें तो वो भी सुन ले, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन जब तीसरी मर्तबा जहन्नम सांस लेगा तो अंबियाए किराम की शान ये होगी कि इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह से करेंगे मौला आज तेरा खलील किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। ये अंबिया की शान। सैयदुल अंबिया के अलावा नबियों की शान देखें क्या है क़यामत के दिन। मेरे भाइयों जो होगा देखा जाए। ये कहते हो ना, देख लो, सुन लो। इब्ने हजर लिख रहे, फारूक आजम को सुना रहे, इब्राहिम खलीलुल्लाह। कौन इब्राहिम खलीलुल्लाह? मस्जिद, चंदे पे मस्जिद बनाने वाली हस्ती नहीं। हम चंदे जमा करके मस्जिद बनाए तो अपने आपे में नहीं है। इब्राहिम खलील ने अपनी मेहनत से काबा बनाया, अपने बेटे को साथ में लेके काबा बनाया। हम जानवर ज़बा करते हैं बकरीद में और पता नहीं क्या नियत होती है अल्लाह जाने, लेकिन बहरहाल जानवर की छुरी रखते हैं आपे से बाहर है। इब्राहिम खलील ने तो एक लौते खूबसूरत बेटे पे छुरी रख दी अल्लाह की मोहब्बत में। क्या मोहब्बत थी। उसके बाद अल्लाह खलील तूने बनाया ना, मकाम खुल्लत ताकि उसका वास्ता, उन मोहब्बतों का वास्ता। आज तेरा इब्राहिम तुझसे कुछ नहीं मांगता, किसी के लिए कुछ नहीं, सिर्फ मुझे अमान दे दे बस। आज तेरा इब्राहिम तुझसे तेरी अमान चाहता है बस। हजरत फारूक आजम रो पड़े, रोने में इजाफा हो गया। फिर कहते हैं अमीरुल मोमिनीन इसी पे बस नहीं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज करेंगे मौला तूने मुझसे कलाम किया ना, बातें की ना, गुफ्तगू की ना, मुझे तू तूर की तरफ बुलाकर कलाम करता था। मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया, तूर के दाईं तरफ आता कि तुझसे प्यार की बातें करूं, तुझसे सरगोशी करूं। मौला तूने मुझे कलीम बनाया, मौला उस कलाम का वास्ता। आज तेरा कलीम मूसा अपने लिए कुछ, किसी के लिए कुछ नहीं मांगता, किसी के लिए कुछ नहीं मांग, अपने लिए अमान चाहता, मुझे अमान दे दे बस। आज मैं किसी के लिए कुछ नहीं मांगता। हजरत काबे अहबार कहते हैं अमीरुल मोमिनीन इसी पर बस नहीं। हजरत ईसा रूहुल्लाह कलीमतुल्लाह कहेंगे मौला आज मैं अपनी मां मरियम के लिए भी तुझसे कुछ नहीं मांगता। ये नशर है, ये मासूम लोगों की शान है मेरी, जिस दिन के लिए अल्लाह ने फरमाया वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, क़यामत की क्या तैयारी की है तुमने। अंबिया किराम, और कौन अंबिया? खलीलुल्लाह, कलीमुल्लाह, कलीमतुल्लाह, हमारा क्या, अपनी क्या कैफियत है? बहुत सुकून से बैठे हो, बहुत पाप कर रहे हो, बहुत ऐश कर रहे हो, मस्जिदें वीरान हो गई एहसास ही नहीं, हराम खा रहे एहसास ही नहीं, ज़िना तक कर रहे एहसास नहीं, लड़कियां औरों का हाथ पकड़ कर जा रही एहसास ही नहीं, बेटियां बेपर्दा घूम रही एहसास ही नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मौला आज मैं मेरी मां मरियम के लिए भी कुछ नहीं मांगता, आज तो बस अपने लिए अमान मांग, अपने लिए मांग, बस किसी के लिए कुछ। जिस वक्त ये कैफियत होगी खलीलुल्लाह की, कलीमुल्लाह की, कलीमतुल्लाह की, उस वक्त लोग एक मंजर भी देखेंगे कि एक
ہستی سر سجدے میں رکھ کر کہے گی اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، اپنی امت کی مغفرت چاہتا۔ میرا اور آپ کا نبی حضرت کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین، اب سن لو اس پر بات پوری ہوتی ہے، امیر المومنین اگر بفرض محال، توجہ کرنا جملے پہ توجہ کرنا، اگر بفرض محال کوئی بندہ قیامت کے دن 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر آئے تو بھی وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے۔ 70 نبیوں کے برابر اعمال لے کر کے آئے، حالانکہ ایک نبی کے برابر بھی کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن یہ مبالغہ کیا جائے۔ امیر المومنین کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی اعمال لے کر کے آئے بفرض محال تو وہ اپنے عمل کو حقیر سمجھے گا۔ یہ ہے میدان محشر، اس کی ہم نے قرآن کہتا ہے کیا تیار وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہم نماز بھی پڑھ لیتے، روزے بھی رکھ لیتے، توبہ استغفار بھی کر لیتے، تو بھی ہمیں ڈرنا چاہیے تھا۔ جن کو قرآن جنت کی بشارت دیتا ہے وہ اتنا ڈر رہے ہیں، جنہیں حدیث میں جنت کی بشارت وہ اتنا، اور ہم کھلے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، شیطان نے اغوا کیا ہے، آج سچی توبہ کرو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ کئی سادات کرام ہیں، کئی علماء کرام ہیں، اللہ والے لوگ یہاں جمع ہیں، آپ بھی توبہ کریں، ہم بھی توبہ کریں، زندگی بدلیے۔ تاش کے پتے کھیلے تو، نشہ کیا ہے تو، عورتوں پہ بد نظری کی ہے تو، کسی کا حق مارا ہے تو، بہن کا حصہ نہیں دیا ہے تو دے دو، بھائیوں کا حصہ دبا لیا ہے تو دے دو، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے تو دے دو، کسی کی کرائے کی زمین لے کر کے پھر اس کو ہڑپ کر لیا ہے تو واپس کر دو۔ یہ دنیا ہے، یہاں سے کچھ نہیں لے جائیں گے۔ کفن میں یا تو اچھا عمل لے جاؤ گے یا تو برا۔ کفن بھی میرے بھائی، جب ہم کپڑا خریدتے ہیں تو 4 دکان چیک کر کے خریدتے ہیں، کفن تو کوئی چیک کر کے بھی نہیں آئے گا۔ لوگ کیسے کیسے کفن میں دفنا دیتے ہیں۔ اور کووڈ میں تو میں نے دیکھا کہ کروڑ پتی لوگوں کو خود کے پیسے کا کفن نصیب نہیں ہوا، بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان نے بھی اس کو کفن نہیں پہنایا، کفن پہنانے والا کوئی اور۔ یہ حالات ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ہر وقت اس سے ڈرتے رہو۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو کتے کو پانی پلانے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور راضی نہ ہو تو 80,000 سال تک، لاکھوں سال تک عبادت کرنے والے کو بھی شیطان بنا دیتا ہے۔ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی اپنی رضا ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے، اس لیے اس کو مناتے رہو، پتہ نہیں کس پہ راضی ہو جائے۔ لکڑی اگر تکلیف دینے والی رستے سے ہٹا دو تو بھی راضی ہو جاتا ہے، کتے کو پانی پلا دو تو بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اگر کسی پہ ناراض ہونے پر آئے تو پھر بہت اعمال کرنے والے کو بھی جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہر وقت توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، آخرت کی فکر کرتے رہو، اور خاص طور پر ہر نماز میں ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے رہو کہ اللہ ایمان پر قائم رکھ اور ایمان پر خاتمہ فرما۔ اس لیے کہ کون ایمان پہ مرے گا اور کون نہیں مرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر وہ رحمت کا رخ پھیر لے تو نبی کا بیٹا بھی کافر ہو کر مرتا ہے، اور اگر وہ کرم کر دے تو پھر ابو لہب کی بیٹی کو بھی ایمان کی دولت عطا کرتا ہے۔ اگر وہ کرم کا رخ پھیر لے تو صحابی کے گھر میں جہنمی پیدا ہوتا ہے، اور اگر وہ کرم فرما دے تو ابو جہل کے بیٹے کو مقام صحابیت عطا کر دیتا ہے۔ یہ اس کے کرم کی بات ہے، اس لیے اس کو راضی کرتے رہو۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھ پہ رحم فرمائے، آپ سب پہ عمل کی توفیق دے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ 31 دسمبر ہے اور آپ کے قریب میں عمل نیر ہے۔ عمل نیر میں صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک سنی دعوت اسلامی کا عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہزاروں کی تعداد میں اس میں شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ کل مرکزی خطاب قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا ہوگا، تصور مدینہ میں دعا بھی ہوگی۔ کیا میں امید کر سکتا ہوں جب آپ یہاں ہزاروں کی تعداد میں آئیں تو اتنے سب وہاں آ جائیں گے تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ کل آپ آ سکتے ہیں، ذرا نیت کریں تو کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ ارے واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اٹھا کے رکھیں، فرشتے وہ گواہ بنا لیں، اللہ والوں کو گواہ بنا، اٹھا کے رکھیں تھوڑا۔ سردی ہے مجھے معلوم ہے، لیکن عاشقان رسول کو کوئی سردی پھر سردی ہے، جب عشق کی بات ہے تو سردی کیا، ذرا اٹھا کے رکھیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں تو ذرا اور لطف آ جائے۔ ارے واہ سب آئیں گے نا انشاءاللہ کل، بہت دور نہیں ہے، قریب ہے۔ میں بھی عمل نیر کا لیڈیز کا پروگرام ختم کر کے آیا ہوں، تو جب میں یہاں تک آ سکتا ہوں تو آپ بھی وہاں تک آ سکتے ہیں، آئیے نا انشاءاللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بھائی بس بہت لمبا بیان کر لیا میں نے ابھی تو کیا دوبارہ بلانے کا ارادہ نہیں؟ السلام علیکم. لوگ تھک جائیں پک جائیں اس سے بہتر ہے کہ بیان ختم ہو جائے. انشاءاللہ پھر بیان کریں.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله قبل كل شيء. الحمد لله بعد كل شيء. الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم ثبتنا على الإسلام وأمتنا على الإيمان واحشرنا زمرة المسلمين. اللهم حبك وحب من يحبك وحب رسولك. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين. ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحم على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة
अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिदाका वल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिदाका वल जन्ना। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या रब्ब मोहम्मद मुस्तफ़ा, या रब्ब मोहम्मद मुस्तफ़ा, या रब्ब मोहम्मद मुस्तफ़ा। मौला हम सबके गुनाहों को माफ कर दे, हम सबकी खताओं को माफ कर दे। ए अल्लाह, रात की तारीकियों में हमने जो गुनाह किए, दिन के उजाले में जो गुनाह किए, जानबूझकर जो गुनाह किए, अनजाने में जो गुनाह किए, मौला हमें दूसरे को गवाह बनाकर, तेरे महबूब को तुझे गवाह बनाकर, तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपने हर गुनाह से तौबा करते हैं। मौला हम सबकी मगफिरत फरमा दे, हम सबकी बेहिसाब मगफिरत फरमा दे। अल्लाह तेरे करोड़ों करोड़ एहसान है मौला, एक एहसान पर और कर दे मौला, हम सबकी बेहिसाब मगफिरत कर दे। हमें नहीं मालूम कितनी हमारी जिंदगी बाकी है मौला, आज यहाँ से हटने से पहले पहले सबको बख्श दे, हमारा शुमार बख्शे हुए में फरमा दे मौला। मौला करम कर दे मौला, तुझे माफ करना बहुत पसंद है, हम सबको माफ कर दे। तेरे करोड़ा करोड़ एहसान है, एक एहसान और कर दे मौला। अगर हम जैसे करोड़ों को तू बख्श देगा तो तेरा कोई नुकसान नहीं होगा मौला, तेरी जात नफा और नुकसान से पाक है मौला। मौला तू बेनियाज है मौला, तेरे महबूब के रुखे रोशन का वास्ता, तेरे हबीब के रुखे मद्दुहा का वास्ता सबको बख्श दे, हमारे माँ बाप को बख्श दे, हमारे मरहूमीन को बख्श दे, हमारे खानदान वालों को बख्श दे। क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिकाने रसूल पैदा फरमा, उन सबको बख्श दे। या अल्लाह आज के बाद सबको गुनाह से नफरत अता फरमा, गुनाह से घिन अता फरमा, गुनाह से रिश्ता तोड़ दे मौला, नेकियों से रिश्ता जोड़ दे मौला। मौला सबको नमाजी बना दे, हमें हमारे घर वालों को क़यामत तक की हमारी नस्लों को हाजी नमाजी बना दे, इबादत की तौफीक दे मौला। अजान हो तो ऐसी बेकरारी दे मौला, जब तक नमाज न पढ़े दिलों को चैन न मिले। या अल्लाह हर गुनाह से नफरत दे, दिलों को कीनों से पाक कर दे, बुग़्ज़ हसद से दिलों को पाक कर दे, हासिदीन के हसद से बचा, अशरार के शुर से बचा, जालिमों के जुल्म से बचा। या अल्लाह हमें सच्चा आशिक़ रसूल बना दे, सच्चा आशिक़ रसूल बना दे, सच्चा आशिक़ रसूल बना दे। ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर नहीं। रियाकारी से बचा ले, मक्कारी से बचा ले, गुरूर और घमंड से बचा ले, इखलास अता कर दे। जितने अहले ईमान बीमार हैं या अल्लाह तेरे हबीब के हर उम्मती जो बीमार है सबकी बीमारियां दूर कर दे। या अल्लाह जो तेरे महबूब के उम्मती मर्द औरत परेशान है सबकी परेशानियां दूर कर दे, सबकी तकलीफें दूर कर दे। जिनको औलाद नहीं है नेक औलाद दे दे, औलाद वालों की औलाद को नेक बना दे, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दे। जिनके बच्चे बच्चियों को रिश्ते नहीं अच्छे रिश्ते अता कर दे, सबको अच्छी रोजी दे, हलाल रोजी दे, सबके घरों में बरकतें दे, रिस्क में बरकतें दे। दोनों जहान की जिल्लत और रुसवाई से बचा, आफतों से बचा। जो जेलों में उनको रिहाई के लिए असबाब बना दे, जो बेजा मुकद्दमात में उनको बाइज्जत बरी फरमा दे। या अल्लाह दोनों जहान में तेरी अमान अता फरमा। मौला अगर तू नाराज है हमसे, नाराजगी खत्म कर दे मौला। तेरे हबीब का सदका मौला हमसे राजी हो जा, हमारे माँ बाप से राजी हो जा, क़यामत तक हमारी नस्लों से राजी हो जा। तेरी रजा अता कर, तेरे महबूब को राजी कर। तू राजी हो जा मौला, तू राजी हो जा, तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा, तू राजी हो जा। तेरे हबीब को राजी कर दे, तेरी रजा वाले कुछ काम ले ले मौला। जिंदगी तेरी रजा के लिए दे मौला, तेरे हबीब की रजा के लिए दे। आज की महफिल को जिन भाइयों ने बहनों ने जिस तरह भी सजाने में हिस्सा लिया, सबको तेरी शान के लायक बेहतर जजा दे, बेहतर सिला दे मौला। हजार तमन्ना में मुनव्वरा में खात्मा बिल खैर अता फरमा, बकी शरीफ में 2 गज जमीन अता कर। क़यामत के दिन तेरे हबीब की शफाअत से उन्हीं के पड़ोस में
بے حساب جنت عطا فرما مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے دینا آتا ہے جو مانگے وہ بھی دے دے جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لو آج کسی کو مایوس نہ فرما محروم نہ فرما تیرے محبوب کا صدقہ عطا کر دے الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت رکنی والقبول منو دست دامان آل رسول ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین